गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज आपका एनक्यू का पार्ट 31 है और क्वेश्चन नंबर 50 है और ये कंप्लीट क्वेश्चन है एनक्यू का, जिसमें आपको इनकम एंड प्रिंसिपल बनाने हैं और बैलेंस शीट भी बनाने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। Following is the receipt following is the receipts following the receipts is the receipts and payment upon receipts and payment upon of Women Welfare Club of Women Welfare Club for the year ended for the year ended 31st December 2020. Receipts and payment upon for the year ended 31st December 2020. Receipts amount rupees, payment amount rupees. Balance BD balance VD 7,250. Subscription subscription 81,750. Donation 3,000. Grant from government grant from government 15,000. Sale of newspaper sale of newspapers 300. Proceeds of charity show 2. Proceeds of
charities of 16,500. Interest on investment interest on investment interest on investment at the rate of 10%, 7,000 है for full year. Strategic income income 400 है। अब यहाँ पे देखिए बाई सैलरीज 12,500 है। सैलरीज 12,500 है। टू स्टेशनरी 1,700 है। बाई स्टेशनरी 1,700 है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बाई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 9,550 इंश्योरेंस बाई इंश्योरेंस 7,500 बाई इक्विपमेंट्स 30,000 petty expenses petty expenses 500 expenses on charity show expenses on charity show 12,900 newspaper by newspapers 1,000 lecture fees lecture fees 16,500 honorarium to secretary honorarium to secretary 12,000 my balance CD 27,050 1,31,200 1,31,200
Additional information. Additional information. Additional information. Additional information. 1/1/2020. 1/1/1/2020. 31st December 2020. Outstanding salaries. Outstanding salaries. Outstanding salaries 1,200. 1,800. Insurance prepaid. Insurance prepaid. Insurance prepaid 700, 300. 300. Subscription outstanding. Subscriptions outstanding 3,750. 3,750 और 2,500. Subscription received in advance. Subscription received in advance 1,750 और 1,000. Electricity charges outstanding. Electricity charges outstanding. Electricity charges आउटस्टैंडिंग ओपनिंग में नहीं है और ये 1,250. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 2,250 और 700. Equipments. Equipments 25,600. 25,600. 50,200. 50,200. Building. Building 1,20,000. 1,14,000. 1,20,000. 1,14,000. Prepare income and expenditure account for the year ending December 31st, 2020 and balance sheet on that date. Prepare income and expenditure account. Prepare income and expenditure account. Prepare
income and expenditure upon and balance sheet income and balance sheet income and expenditure account for the year ended 31st December 2020 and closing balance sheet. Okay. एक पहले क्वेश्चन को अच्छा से देख लीजिए। ये क्वेश्चन से आपके पेज को ओपन कर रहा हूँ, देखते चलिए। फिर ऊपर कर रहा हूँ, फिर ऊपर कर रहा हूँ। ये क्या? अब इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ, पहले मैं थोड़ा सा वर्किंग नोट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें वर्किंग नोट सा ज़्यादा है, इसलिए मैं पहले वर्किंग नोट कर देता हूँ। देखिए पहले वर्किंग नोट कर देता हूँ, जो कुछ इसमें वर्किंग नोट ज़्यादा है इसलिए सॉल्यूशन में देखिएगा। पहले सब्सिशन अकाउंट, कैलकुलेशन ऑफ सब्सिशन अकाउंट, कैलकुलेशन ऑफ सब्सिशन। सब्सिशन में बहुत सारे क्वेश्चन डाल दिए, यदि कोई डाउट होता है तो आप देख सकते हैं। सब्सिशन वाली पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चन कर रखा है। अब यहाँ पे देखिए टोटल सब्सिशन रिसीव, टोटल सब्सिशन रिसीव 81,750 लेस ओपनिंग सब्सिशन आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग सब्सिशन आउटस्टैंडिंग है 3,750 प्लस क्लोजिंग सब्सिशन आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग सब्सिशन आउटस्टैंडिंग 2,500 प्लस opening subscription received in advance 1,750 less closing subscription received in advance, receiving advance 1,000। राइट, अब इसको कैलकुलेशन कर देते हैं। ये वर्किंग नोट है सारा, ये वर्किंग नोट है, राइट। सब्सिशन रिसीव इन एडवांस आपका 81,750 माइनस
4750 plus 2500 plus 1750, 81,250, 81,250 ये आपका सब्सक्रिप्शन है। 81,250 टोटल सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर आ गया। टोटल सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर आ गया। ये वर्किंग नोट हो गया, ठीक है। ये वर्किंग नोट 1 हो गया। वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंसेस, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंसेस। ये तो छोड़ दीजिए, ये तो ऊपर नहीं कर लेंगे, रहने दीजिए, इतना तो चल गया। चलिए आप क्वेश्चन ही बना देते हैं, नहीं तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहाँ लिखेंगे ऑफ वुमेन वेलफेयर क्लब, वुमेन वेलफेयर क्लब for the year ended 31st December 2020। DR CR expenditure amount rupees, income amount रुपीज है। अब वो 1 by 1 और by subscription $81,250, donation $3,000, grant from government, 15,000, sale of newspaper, by sale of newspaper, 300, proceeds of charity show, by proceeds
proceeds of charity show. Charity show 16,500 है. इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट 7,000 है. सैलरीज इनकम बाय सैलरीज इनकम है. सैलरीज इनकम 400 है. अब यहाँ पे दे सैलरीज, टू सैलरीज 12,500 है माइनस 12,500 लेस अपनी सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,200 प्लस क्लोजिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,800. ठीक है, तो आ जाएगा 13,100. 13,100 तो 600 13,100. उसके बाद बाय स्टेशनरी टू स्टेशनरी स्टेशनरी स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1,700 है प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 2,250 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. चल पूरा ही लिख देता हूँ. ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 700. ये हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं. तो 3,250 हो गया. इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस 7,500 प्लस ओपनिंग प्रीपेड इंश्योरेंस 700 माइनस क्लोजिंग प्रीपेड इंश्योरेंस 300. ओके 400 तो 7,900 इक्विपमेंट्स टू डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट्स अच्छा इक्विपमेंट्स में यहाँ पे है डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट्स डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट्स
देखिए पहले से कितना आपके पास इक्विपमेंट्स 25,600 है। फिर 25 कितना आपने क्या परचेज, ये पहले से है। फिर आपने कितना परचेज किया 30,000 है। और यूज करने के बाद कितना बचा हुआ है 50,200। 50,200 क्या हुआ है बचा हुआ है। ये आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो आपका डेप्रिसिएशन जो आएगा 55,600 माइनस 50,200 5,400 हो गया। 5,400 हो गया। उसके बाद पैटी एक्सपेंसेस, टू पैटी एक्सपेंसेस पैटी एक्सपेंसेस 500 है। Expense on charities of expense on charity show, expense on charity show 12,900 newspapers lecture fees 16,500 to honorarium to secretary 12,000 हो गया। और यहाँ लिखे टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, देखिए ओपनिंग में 20,000 है और क्लोजिंग में 14,000 दिखा रहा है। तो जो डिफरेंस है 6,000 का वो डेप्रिसिएशन हो गया। और यहाँ लिखेंगे टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है कितना 9,550 है, 9,550 है प्लस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आउटस्टैंडिंग, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आउटस्टैंडिंग 1,250 जीरो का जीरो 5 का 10 का 0 1 5 2 7 1 8 9 1 10 10,800 ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद चेक कर लेते हैं ये कुछ नहीं जाता हो। 13,100 3,250 10,800 7,900 उसके बाद 500 12,900 1,000 16,500 12,000 5,400 6,000 ओके। और दिस साइड 8,250 3,000 15,300 16,500 7,400 है।
ओके, टोटल आ गया 1,23,450 है। $1,23,450, 1,23,450 है, और यहाँ पे आ जाएगा टू सरप्लस। सरप्लस आपके पास आ गया 34,100। देखिए, पहले मैं हट जाता हूँ, पहले बार देख लीजिए। ये आपका बेटा ये वर्किंग नोट करा दिया, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट भी कर दिया। अब मैं आपका बैलेंस शीट बना रहा हूँ, अपनी बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। देखिए यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने को बोल रहा है, राइट है। लेकिन जब तक आप अपनी बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे तब तक क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं बनेगा। क्यों अपनी बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा? क्योंकि कैपिटल फंड नहीं दे रखा है, तो कैपिटल फंड निकालने के लिए आपको अपनी बैलेंस शीट बनाना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो जो जो आपके एसेट साइड में आ रहा है आइटम वो एसेट साइड में डाल दीजिए, जो लायबिलिटी साइड में आते हैं हमारे लायबिलिटी साइड में डाल दीजिए। तो टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी लेस कर दीजिए, और जो बचेगा वो आपका क्या कैपिटल फंड है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग ना बना करके, ठीक है, मैं क्या करता हूँ बैलेंस शीट में 2 कॉलम बना देता हूँ। इससे क्या होगा कि आपका टाइम बच जाएगा। जैसे स्टॉक है तो 2 बार लिखने के बजाय आपको 1 बार लिखना पड़ेगा। जैसे बिल्डिंग है 2 बार लिखने के बजाय आपको 1 ही लिखना पड़ेगा। एसेट्स और लायबिलिटी जो 2 बार लिखेंगे तो 1 बार ही लिखना पड़ेगा। नाम बाद 2 बार जो लिखते हैं तो 1 बार लिखना पड़ेगा। इसलिए मैं एक ही में दोनों बैलेंस शीट बना देता हूँ, सिर्फ कॉलम ही एक्स्ट्रा खींच देता हूँ, इससे आपका टाइम भी बचेगा। ओके, देखिए, तो देखिए बैलेंस शीट, ये बना देता हूँ। बैलेंस शीट ऑफ वुमेन क्लब, वुमेन वेलफेयर क्लब। ठीक है, अब देखिए ऐसे साइड पे लेके चलिए। कैश इन हैंड, देखिए जो बीडी है वो अपनी है, जो बीडी है
वो ओपनिंग है 7,250 और जो क्लोजिंग यहाँ पे बैलेंस शीट है वो क्लोजिंग है 27,050 है। ओके, अब यहाँ पे आ जाइए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1,200 और 1,800। सब्सक्रिप्शन इंश्योरेंस प्रीपेड ओपनिंग में 700 है और क्लोजिंग में 300 है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सॉरी बेटा, ये मुझसे गलत हो गया। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग तो आउटस्टैंडिंग से लीजिए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग यहाँ पे लेके चलेंगे। ये आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 3,750, सॉरी ये ओपनिंग है 3,750 ओपनिंग ये वाली, और क्लोजिंग जो है ये 7 है और ये 2,500, क्लोजिंग 2,500 है। और ये जो आपका था ये सेल आउटस्टैंडिंग सैलरीज, गलती से मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया था, ये आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, ये आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज है 1,200 और ये 1,800 है। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 1,750 और इसमें कितना 1,000 है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आउटस्टैंडिंग, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आउटस्टैंडिंग, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आउटस्टैंडिंग 1,250। ये क्लोजिंग है तो क्लोजिंग में जाएगा। उसके बाद बुक स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बाय स्टॉक ऑफ स्टेशनरी स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 2,250 और यहाँ पे क्लोजिंग में जो है ये 700 है और इक्विपमेंट्स ओपनिंग में 25,600। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी then equipment 25,600 और इसमें जो है 50,200। बिल्डिंग
और 1,14,000। ये देखिए कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा इन्वेस्टमेंट, देखिए यहाँ पे समझा देता हूँ। जब आपके पास यहाँ पे वर्किंग कर देते हैं, यहाँ पे इनकम जब आपके पास, इंटरेस्ट जब आपके पास, यहाँ पे वर्किंग कर देता हूँ। इंटरेस्ट जब आपके पास 10% है, 10 रुपीज, 10% का मतलब क्या, जैसे यहाँ पे लिखा है कि जो आपके पास इंटरेस्ट आया 10% के रेट पे 7,000 आया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 10% फॉर फुल ईयर 7,000 आया, 10% के रेट पे फुल ईयर का। ये इंटरेस्ट है, ये ध्यान रखिएगा, ये इंटरेस्ट है। तो 10% के रेट पे इन्वेस्टमेंट कितना रहा होगा, देखिए तब तक कैलकुलेशन कर देता हूँ। इंटरेस्ट जब हमारे पास 10 रुपया है तो इन्वेस्टमेंट कितना रहा, 10% का मतलब क्या हो गया, 100 में 10, ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। थोड़ा वर्किंग यहाँ पे कर रहा हूँ समझाने के लिए। इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 100 रुपया। जब आपके पास 1 रुपया इंटरेस्ट होगा तो कितना होगा इन्वेस्टमेंट, 100/10 हो जाएगा। जब आपके पास इंटरेस्ट 7,000 हो तो इंटरेस्ट कितना रहेगा, तो कितना रहेगा बेटा, 70,000। तो 70,000 आपका क्या इन्वेस्टमेंट है। और ये क्या बोल रहा है, ये फुल ईयर बोल रहा है, तो मतलब क्या हुआ, पहले से रहा होगा ना, जब पहले से रहा होगा तभी तो फुल ईयर होगा। और करंट ईयर में यदि 25 किया होता, सपोज बोलेंगे सर करंट ईयर में 25 भी तो कर सकते हैं बिगिनिंग में, तो 25 किया होता तो इस साइड में आता, यहाँ पे पेमेंट में आता, तो यहाँ पे तो है नहीं है, इससे मतलब ये पहले से चला आ रहा है। आप यहाँ पे ओपनिंग में भी डाल देंगे और क्लोजिंग में भी डाल देंगे। ओके, ये वाली आपका कंप्लीट हो गया। ये वर्किंग समझ लीजिए, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत करेगा कि 70,000 आया कहाँ से। यहाँ पे बोल रहा है, फिर से बता रहा हूँ कि ये 7,000 जो है वो 10% के हिसाब से ये इंटरेस्ट है, क्लियर है। तो 10% के हिसाब से फुल ईयर का 7,000 इंटरेस्ट है, तो इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा। तो यहाँ पे मैंने वर्किंग कर लिया कि जब इंटरेस्ट 10 है तो इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 100 रुपीज हो चुके। 10% का मतलब क्या था, 100 में 10, राइट है। तो जब 1 रुपया होता है 100/10, जब 7,000 हो तो कितना, 70,000, तो इन्वेस्टमेंट 70,000 हो गया। ये आपका मिसिंग फिगर था, ठीक है ना, आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अब इसको टोटल कर देते हैं। $27,000 2050 plus 2,500 plus 1,000 50,200 1,54,000 2,64,750 फिर आ गया 2,64,750। ये भी टोटल होगा 2,64,750। अब ये बैलेंस ये ले लेता हूँ, 7250 ओपनिंग, 3750 प्लस 700 2250 25,600 1,90,000 2,29,000 2,29,550 2,29,550 है, माइनस 1,200 माइनस 1,700 है, आपका 2,26,650।
देखिए कैपिटल फंड है, कैपिटल फंड 2,26,600 है। ये कहाँ से आया देख लीजिए, 2,29,550 है, -1,200 है, -1,750 है, ये आ गया। अब दोबारा लिख लीजिए, कैपिटल फंड 2,26,600 है प्लस सरप्लस है। सरप्लस आपके पास जो आया 34,100 प्लस 34,100 2,60,700 2,60,700 है प्लस 2,250 प्लस 1,800 आ गया 2,64,750। देखिए दोनों टैली कर गया। अब इसको एक बार देख लीजिए, बड़ा सा क्वेश्चन है नो डाउट, पर आप देख लीजिए, तो मैं हट रहा हूँ। ये देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बड़ा हो गया नो डाउट, लेकिन इसमें सीखने को बहुत कुछ है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, एक दो बार देख करके के लिए, उसके बाद फिर वगैरह देखे कीजिए। ठीक है, आप लोग के 12th क्लास में इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक, इसलिए इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।